Hello everyone, my name is Animesh Jain and I have secured AI63 this year. In this video, we are going to discuss some templates which we can use for the economy part of GS. तो जैसा हमने पहले भी देखा है that one of the challenge in GS3 for good marks. So my own score has been 98 this year, which can be considered good as per the general trend in GS3. That people, even rankers, have scored in the 80s and 70s. So I will tell you what has been my approach, what templates I have used. So as discussed earlier also, that in GS3 generally what I have found is that writing more number of points help. So if there is a question of let's say 10 marker, I tend to write 12 to 15 points. And if there is a question of 15 marker, I tend to write let's say 20 to 22 points. And we have to do this consistently in all the questions. That has been my approach to score this decent marks in GS3. Right? So the issue here is that first we need to have this generic point ready in our core content. Then only we can implement it in our answer. Okay. So I will show you with some examples also. That some generic points I will show, some dimensions in economy which we can apply, and how actually we can apply those points in the questions which are there. Right? तो अगर हम लोग देखें what can be the dimensions in the Indian economy, let's say, क्या की डायमेंशन होते हैं which we can open. So first we can say savings and capital formation. So gross savings and gross fixed capital formation, employment, wages, economic output, GDP, GNP, export, trade balance, your current account deficit, public and private sector का role of interest rates and credit, sectors like services, manufacturing, agriculture, competition and market access, laws and regulatory framework, logistics and infrastructure. ये कुछ 10 dimensions हैं. More if we see. So trade barriers and tariffs, formalization of economy, population and demographics, purchasing power parity, inflation and price stability, supply and demand dynamics, global supply chain disruptions, geopolitical tensions, protectionism and few SDGs. तो ये मैंने कुछ 20 कीवर्ड्स का जो है जेनरिक फ्रेमवर्क रेडी किया कि यार ये 20 पॉइंट में से आई कैन पुट 15 पॉइंट्स इन एनी काइंड ऑफ इकोनॉमी आंसर, राइट? सेम थिंग कैन बी डन विद डेटा इंडिकेटर्स. कुछ हम लोग जेनरिक डेटा पॉइंट याद रख सकते हैं. तो व्हाट हैज बीन द जीडीपी रेट ऑफ ग्रोथ, व्हाट इज द लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ऑफ आवर जीडीपी, व्हाट हैज बीन इंडियाज रैंकिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में रैंकिंग क्या रही है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रैंकिंग क्या है, व्हाट हैज बीन द एफडीआई इनफ्लो लास्ट ईयर, आईपीओ मार्केट वैल्यूएशन क्या है, सम कमिटी नेम्स एटसेट्रा. ऑल दिस थिंग्स वी कैन जेनरिक पॉइंट्स, जेनरिक डेटा पॉइंट्स वी कैन रिमेंबर. मान लीजिए फिर पूछते हैं कि किसी भी चीज के बेनिफिट क्या है. भाई स्टार्टअप्स को प्रमोट करने का बेनिफिट क्या होगा, या फिर लेट्स से एमएसएमई का बेनिफिट क्या है. तो अगेन सम जेनरिक पॉइंट्स आई प्रिपेयर्ड. दिस माइट सीम वेरी इजी, बट व्हेन वी राइट हम लोग जो है 5 पॉइंट के बाद भूल जाते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखें. तो अगर ऐसे 10 पॉइंट्स रेडी हैं वी कैन डायरेक्टली राइट दिस. तो फॉर एग्जांपल बेनिफिट ऑफ एमएसएमई विल बूस्ट जीडीपी ग्रोथ, will lead to more employment creation, will lead boost India's exports. It will lead to more attraction of the investments in the country. It will reduce the current account deficit because our exports will grow and imports will reduce. It might also boost R&D innovation, especially when these MSMEs are in the emerging sectors. Let's say your, we can say the renewable energy sector, for example. We can leverage external credit markets. These MSMEs want to take loans from abroad. Can help in achieving specific SDGs. For example, SDG 8, decent work and economic growth. SDG 9, industry infrastructure innovation. SDG 10, reducing the inequalities. तो अभी आप देख पा रहे हो कि जो 10 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, these points are valid not just for MSME but also for startups. बस स्टार्टअप के बेनिफिट्स पूछते तब भी हम लोग शायद 10 पॉइंट ही सेम ही लिखते हैं, यार ये सारे बेनिफिट्स होंगे. So right, like this we can have a generic template that benefits of dash is asked, we can write such kind of points. अब मान लीजिए लिखते हैं what can be the benefit of boosting the manufacturing sector in the country. ये क्वेश्चन आता है. आप देखोगे कि सारे पॉइंट फिट इन हो रहे हैं. जीडीपी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, सीएडी कम होगा, आरएनडी इंक्रीज होगा,
कैन लेवरेज एक्सटर्नल मार्केट, कुछ एसडीजी अचीव होंगे. बेनिफिट ऑफ लेट्स से इंफ्रा क्रिएशन इन द कंट्री. गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मनी इन इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट इज द बेनिफिट? बूस्ट जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट. जो है एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेंगे? बिकॉज अवर गुड्स विल बी चीपर. अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है कम हो जाएगा, ट्रैवल टाइम बचेगा, तो दैट वे इट कैन बूस्ट अवर एक्सपोर्ट्स ऑल्सो. लॉजिस्टिक्स अगर अच्छे रहेंगे, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगा, कंपनीज वुड वांट टू कम. अगर इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लेट्स से इट माइट रिड्यूस अवर सीएडी, इट विल बूस्ट R&D इनोवेशन, कैन लेवरेज these things, will lead, help us achieve SDGs also. So the idea is to use these generic points to any kind of answer. The benefits of dash में आ जाता है. वन मोर एग्जाम्पल देखते हैं. मान लीजिए क्वेश्चन आता है इश्यूज, व्हाट हैव बीन द इश्यूज इन द इंडियन इकोनॉमी. यहाँ पे मैंने इंडियन इकोनॉमी लिखा है, बट ये पॉइंट्स जो हैं 20 पॉइंट्स, ये आप देखोगे कि सारे आंसर्स में वैलिड हैं. कभी भी आपको इश्यूज लिखना होगा ब्रॉडली इंडियन इकोनॉमी पे, सर्विसेज में, मैन्युफैक्चरिंग में, जॉब मार्केट क्यों नहीं, जॉब्स क्यों नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, तो ये पॉइंट सेम ही रहेंगे ओवरऑल. अब देखते हैं, इन्होंने यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि भाई व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर द इंडियन इकोनॉमी व्हेन द वर्ल्ड इज मूविंग अवे फ्रॉम दिस टू दिस, फ्रॉम फ्री ट्रेड, हाउ कैन दीस चैलेंजेस बी मेट. तो सिंपल है, चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, है ना, दिस इज द मेन क्वेश्चन हियर. तो आप देखो क्या पॉइंट लिख सकते हैं. जॉबलेस ग्रोथ है डेफिनेटली, दो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, पॉवर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटी है, दो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जिस कारण से लो डिमांड है, वाइडनिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं, एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस है, लो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर में, स्टैग्नेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है 16%, राइट. मोस्ट ऑफ अवर इकोनॉमी इज इनफॉर्मल, जिस कारण से प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाती है. इट इज 5% पीपल आर वर्किंग इन द इनफॉर्मल सेक्टर. सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन है, तो रफली 30% पे दोनों चीज आके अटक गई लास्ट 10 ईयर्स से. इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स हैं. ये मोर पॉइंट्स अगर आप देखो, रेगुलेटरी हर्डल्स हैं, रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं. हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पुअर है, फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है, पब्लिक डेट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, स्किल मिसमैच है, लैंड एक्विजिशन इश्यूज हैं जिस कारण से इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ पा रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स डिपेंडेंस है, डिजिटल डिवाइड है जिस कारण से वी आर नॉट एबल टू टैप अवर पॉपुलेशन. एफडीआई के कुछ चैलेंजेस हैं, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के इश्यूज हैं, पे कमीशन आ रहे हैं लगातार, हम लोग पेंशन जो है पेंशन कॉस्ट बढ़ रहा है जिस कारण से हमारा राइजिंग कॉस्ट है फॉर द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू इन्वेस्ट इन लेट्स से इंफ्रास्ट्रक्चर और इन द ह्यूमन कैपिटल क्रिएशन, बिकॉज जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो इंक्रीज कर रहा है. एंड देयर इज ऑल्सो लो सोशल सेक्टर स्पेंडिंग इन हेल्थ केयर एजुकेशन, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल. तो आप देखोगे कि जो 20 पॉइंट लिखे हैं, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है व्हाट आर द चैलेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी, तो आप यही पॉइंट्स लिखेंगे. इसके अलावा क्या पॉइंट होंगे इस क्वेश्चन में? तो अब मान लीजिए मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूं यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ आस्किंग अबाउट चैलेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी, लेट मी आस्क व्हाट आर द चैलेंजेस द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो 20 पॉइंट हमने लिखे हैं, उसमें से 15 पॉइंट फिट इन हो जाएंगे. कैसे? चैलेंजेस इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमको बताना है. कि फर्स्ट वी कैन से देयर इज इनफॉर्मल इकोनॉमी, मोस्ट ऑफ आवर मैन्युफैक्चरिंग हैपेंस इन एमएसएमई, जहाँ पे लेबर प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं है. ठीक है, वी कैन से देयर आर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स, रोड्स हैं, एनर्जी हैं, पोर्ट्स हैं, है ना, वो उतना अप टू मार्क नहीं है, दैट्स व्हाई कंपनीज आर नॉट इन्वेस्टिंग. देयर इज ओवरऑल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन, सेविंग्स रेट कम है, कारण से इन्वेस्टमेंट रेट कम है ओवरऑल. दिस पॉइंट कैन बी फिटेड हियर. ठीक है, आप बोल सकते हैं कि प्राइवेट कंजम्पशन कम है, डिमांड कम है, तो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं हो रही है अगर फैक्ट्रीज में, देन ऑल्सो कंपनीज विल नॉट इन्वेस्ट. ये पॉवर्टी है इन जनरल, तो अगेन सेम आइडिया, लोगों की बाइंग कैपेसिटी नहीं है, देन हु विल इन्वेस्ट. ठीक है, देन अगर और देखें पॉइंट्स, यहाँ से आपको 5 पॉइंट्स मिल गए. आप बताओगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के चैलेंजेस में या वाई वी आर नॉट एबल टू इंक्रीज, कि देयर आर रेगुलेटरी हर्डल्स, पीपल डूइंग बिजनेस पुअर है. आप बता सकते हैं स्किल मिसमैच है, आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्किल्ड लेबर नहीं मिल पा रहा है, लैंड एक्विजिशन के इश्यूज हैं जो हैं
कारण से कंपनीज आर नॉट एबल टू सेट अप देयर फैक्ट्रीज हियर। ठीक है, एफडीआई चैलेंजेस हैं, बाहर से जो कंपनीज इन्वेस्ट करना चाहती हैं के लिए उतना ईजी नहीं है इन्वेस्ट कर पाना। लो सोशल सेक्टर स्पेंडिंग है ओवरऑल, जिस कारण से गवर्नमेंट का जो मोस्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर है दैट इज इन द रेवेन्यू साइड, नॉट ऑन द कैपिटल साइड। Now for that reason we're not able to invest in creating a facilitative environment for manufacturing. Now you will see आपके पास 10-12 पॉइंट इकट्ठे हो गए इन 20 पॉइंट में से जो फिट हो जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग। आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन देखेंगे अगेन कैन सी कि जेनरिक पॉइंट्स हैं, यहाँ से रफली 15 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, नॉट ऑल, राइट। दैट्स हाउ वी कैन यूज दिस फ्रेमवर्क्स। कुछ कीवर्ड्स दिस यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट में भी, तो कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो किसी भी आंसर में अप्लाई हो जाएंगे इकोनॉमी में। आप बोल सकते हो दिस इज इंडियाज ग्रोथ रेट, इट इज अ वर्ड प्ले ऑन डिकेड, डिकेड की जगह ग्रोथ रेट हमने यूज किया है। वी नीड टू मूव अवे फ्रॉम रेड टेपिज्म एंड टुवर्ड्स रेड कारपेट फॉर द इंडस्ट्रीज। एंटरप्रेन्योर्स एज द ग्रोथ एम्बेसडर्स ऑफ द कंट्री। वी नीड टू प्रोवाइड प्लग एंड प्ले मॉडल ताकि कंपनीज कैन इजीली कम एंड इन्वेस्ट। India might suffer from middle income trap that our wages are stagnating, our let's say poverty is there, हम लोग एक पॉइंट से ऊपर मूव नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज नोन एज मिडिल इनकम ट्रैप। अगर आपको वे फॉरवर्ड बताना है, वी कैन टॉक अबाउट चाइना प्लस वन मूवमेंट दैट कंपनीज आर हेजिंग, दे वांट टू मूव अवे फ्रॉम चाइना, सो इंडिया कैन अट्रैक्ट दीज कंपनीज। इंडिया कैन फॉलो एशियन टाइगर मॉडल्स, ये कीवर्ड हो सकता है। वी नीड टू गो फॉर फैक्टर मार्केट रिफॉर्म्स इन लैंड लेबर कैपिटल। Government should follow fiscal prudence या fiscal glide path, reduce the fiscal deficit and debt levels. Yeah, more keywords: productivity, profitability, sustainability, improving the capex cycle, focusing on ease of doing business, ease of living. विकसित भारत by 2047, tech-driven economy, farm to factory transition. That India has been predominantly an agrarian economy. वहां से हमें मैन्युफैक्चरिंग में मूव करना है, स्पेशली पीपल, है ना, फोकसिंग ऑन इंडियाज कंपैरेटिव एडवांटेज। दिस आर सम ऑफ द इकोनॉमिक कीवर्ड्स जो हम लोग हमारे आंसर में यूज कर सकते हैं। मोर वर्ड्स यू कैन सी: एड एंड रिसोर्स कर्व्स, लो इक्विलिब्रियम ट्रैप, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, एफआरबीएम एक्ट, काउंटर सिक्लिकल मेजर्स। ठीक है, इंडिया इज ग्रोइंग ओल्ड बिफोर बिकमिंग रिच, दिस इज अ वेरी गुड कीवर्ड दैट इफ वी डोंट स्पेंड इन आवर ह्यूमन कैपिटल नाउ 10-15 years डाउन द लाइन, गिवन द डिक्लाइन इन द फर्टिलिटी रेट, जो हमारा जो स्पेसिफिक ये विंडो था ना वो क्लोज हो जाएगा एंड वी माइट नॉट बिकम रिच। इट्स अ वेरी गुड कीवर्ड। बेसल नॉर्म्स, फ्रेंड शोरिंग, रीशोरिंग। Again some more keywords: from fragile 5, Indian economy is now moving into first 5, and this is again a very good concluding line, some answer. So this was the framework which we can use in the economy. Again next if we see how we can answer any question in agriculture, तो बात करते हैं। So again same idea that there can be some points which you can use in every answer. तो मैंने कुछ यहाँ पे अप्रोचेस बनाए हुए हैं। हम लोग एक तो बात कर सकते हैं फार्मर के लेवल पे, हम लोग बात करेंगे कि लैंड होल्डिंग, पावर्टी लेवल्स एंड लिटरेसी लेवल्स। हम लोग साइकिल अप्रोच लगा सकते हैं, इनपुट की बात करेंगे। इनपुट में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग बात करेंगे वाटर की, सॉइल की, सीड्स की, पेस्टिसाइड की, योर एक्सटेंशन सर्विसेज की। कल्टीवेशन के लेवल पे हम लोग बात करेंगे प्रोडक्टिविटी की, डाइवर्सिफिकेशन की, फिर हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग के लेवल पे हम लोग बात कर सकते हैं। पैकेजिंग की, स्टोर करना है तो कोल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद में मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वेदर फार्मर इज गेटिंग मनी और नॉट। इनपुट्स की बात कर सकते हैं, मैंने बता दिया। इन्वायरमेंटल चैलेंजेस क्या हैं: हीट वेव्स, रेन, पेस्ट अटैक्स। गवर्नमेंट एज ए स्टेक होल्डर वी कैन टॉक एसपीज, सब्सिडीज, कृषि विज्ञान केंद्र, एक्सटेंशन सर्विसेज, व्हाट हैज बीन द एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, रोल ऑफ एफपीओ एंड कोऑपरेटिव्स, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, रोल ऑफ क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इरिगेशन, कोल्ड चेन स्टोरेज। तो अगर आप देखो दिस इज द 10 पॉइंट्स, उसके अंदर भी सब पॉइंट्स हैं, वी कैन अप्लाई दिस पॉइंट्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मान लीजिए क्वेश्चन आता है इन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन ऑफ द फार्मर्स ऑन द सिलेक्शन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स इन इंडिया। फार्मर्स किन बेसिस पे डिसाइड करते हैं whether they should cultivate high value crops or not. Okay. तो अब क्या पॉइंट लिखेंगे अगर हम लोग देखें और वी कैन अप्लाई दिस पर्टिकुलर टेम्पलेट। एक तो आप बात कर सकते हैं कि वन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन
is farmer themselves. So if he has a big land holding, if he's a rich farmer, he might go for commercial crops, या high value crops. ना कॉफी प्लांटेशन कर सकता है, ना फ्रूट्स वगैरह जो हैं हाई वैल्यू फ्रूट्स हैं उसका कल्टीवेशन हम लोग कर सकते हैं. तो फर्स्ट फैक्टर पॉवर्टी. The farmer is rich, then he might go. Farmer is poor, he might go for subsistence farming only for his own family. Literacy level, जितना strong उसका awareness होगा, if he is aware which all crops are high value in the global market and the Indian market, he might be able to grow them. ये हमने बताया फर्स्ट फैक्टर. सेकेंड हम लोग बता सकते हैं वी कैन हैव अ साइकिल बेस्ड अप्रोच. हम लोग बात करेंगे इनपुट की. दैट इफ द सीड्स आर अवेलेबल ऑफ दैट क्रॉप इन अबंडेंस इन दैट पर्टिकुलर रीजन, देन द फार्मर माइट गो फॉर कल्टीवेशन. ये कल्टीवेशन में चैलेंजेस क्या आते हैं? क्या वो सुटेबल है उस पर्टिकुलर जोग्राफी को? कि अगर वो सुटेबल है, फॉर एग्जांपल मेघालय में स्ट्रॉबेरीज आर मोर सुटेबल, देयर फार्मर्स आर गोइंग फॉर स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन. तो कल्टीवेशन के लिए क्या वो डिजायरेबल क्रॉप है या उस पर्टिकुलर जोग्राफी में जहाँ पे फार्मर स्टे करता है? हार्वेस्टिंग में चैलेंजेस क्या आते हैं? पोस्ट हार्वेस्ट देखें, क्या आपके रीजन में कोल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर्टिकुलर हाई वैल्यू क्रॉप के लिए? तो अगर वो फ्रूट है तो अगर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होगी, even if the farmer is producing, it will get spoiled. Farmer will not get the remuneration which he deserves. ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? मान लीजिए आपने ऐसा कोई क्रॉप ग्रो किया जिसको आप इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करना चाहते हो, ड्रैगन फ्रूट है फॉर एग्जाम्पल, बट इफ योर फार्म इज, इफ योर डिस्ट्रिक्ट, इफ योर विलेज इज वेरी फार अवे फ्रॉम एन एयरपोर्ट या फ्रॉम अ रेलवे लाइन, you might not be very much interested in growing that thing, right? So infrastructure presence can also, transport infrastructure presence can also influence the decision of the farmer. इनपुट लेवल पे सॉइल कंड्यूसिव है कि नहीं है, दैट क्रॉप वेदर इट इज वाटर इंटेंसिव, वेदर वाटर इज अवेलेबल इन द रीजन और नॉट, सीड अवेलेबिलिटी वी हैव सीन. एनवायरमेंटल फैक्टर्स, क्या वो जो हाई वैल्यू क्रॉप है वेदर इट इज हाई रेन रेजिस्टेंट, वहाँ का जो टेम्परेचर है क्या उसको वो झेल सकता है, पेस्ट रेजिस्टेंस कितना है, क्या व्हाट इज द गवर्नमेंट सपोर्ट, इफ द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग एमएसपी फॉर दैट क्रॉप, इफ द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सब्सिडी ऑन द सीड्स, गवर्नमेंट इज प्रॉमिसिंग प्रोक्योरमेंट, देन फार्मर माइट गो. Subsidies, MSP का role, extension services, government is promoting that crop in the region, farmers again might go for that crop. जैसे palm oil cultivation government promote कर रही है. Now palm oil can be a very high value crop in the northeast, right? That's how we can talk about role of government extension service. What is the government export import policy? तो government export ban लगा देती है, price levels बढ़ते हैं, farmers might not be invested in growing that particular crop. ठीक है, whether there is a strong presence of FPOs and cooperatives. If yes, then farmers might combine their fields and they might aggregate and they might produce that crop on a high scale. Whether private sector participation is there or not, or is it a dominance of just APMC mandis? So the private sector hai, farmer can go for cooperative farming, farmer can go for contract based farming, he might get higher returns. So your state policy on the allowing of private sector might also influence. Okay, overall infrastructure this we have seen. So that's how we have applied this framework in this particular. So again, अगर आपको 10 पॉइंट्स रटे हुए हैं, आप इजीली क्वेश्चन का आंसर लिख सकते थे. ठीक है, आप देखें कुछ भी अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द इश्यूज इन इंडियन एग्रीकल्चर, क्या पॉइंट लिखेंगे? अब देखिए ये एक जेनरिक वो है, आपको यहाँ से अगेन पिक एंड चूज करना पड़ेगा जो क्वेश्चन है उसके बेसिस. चूज में हम लोग क्या बोलेंगे? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, 85% आर स्मॉल एंड मार्जिनल. द लैंड होल्डिंग segregated, so we are not able to get economy of scale. प्रोडक्टिविटी काफी कम है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज. राइजिंग इनपुट कॉस्ट है सीड का, फर्टिलाइजर का, इन लाइट ऑफ योर यूक्रेन वॉर. लो सीड रिप्लेसमेंट रेट है जिस कारण से फर्टिलिटी कम होती है, कारण से प्रोडक्टिविटी कम होती है आपकी. इरिगेशन एंड कोल्ड चेन गैप्स हैं, मैकेनाइजेशन बहुत कम है. फॉर एग्जाम्पल ओनली 40% फार्मर्स फार्म इक्विपमेंट्स आर मैकेनाइज्ड, whereas in China या फिर in Canada, let's say other countries it is 60%. इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सपोर्ट कितना है गवर्नमेंट की साइड से, इट माइट प्ले अ रोल. कितने फार्मर्स इंडेटेड है, इंडेटेडनेस ज्यादा है, दैट इज एन इशू. एमएसपी का एक्सेस ओनली 6% फार्मर्स के पास है एज पर दी शांता कुमार कमेटी, दैट इज अगेन अ 2 year. देखिए मोर इश्यूज इफ वी सी, तो मार्केट वॉलेटिलिटी, if the price of his product is going up and down, that farmer might not be interested in growing that crop, या फिर he might face losses अगर बहुत ज्यादा मार्केट वॉलेटिलिटी है.
erratic weather conditions because of climate change, and so there might be crop damages. There is low agri R&D, is 0.7%. There are skills gap in agriculture among the farmers. Lack of non-farm employment, because of which we find underemployment phenomena. This guy is underemployment. That more people are working in the farm as compared to what is required. That is lack of non-farm employment. There is low public and private sector investment. This is an issue. Role of arhetas or commission agents, जो middlemen है, they get the major margins and farmers is left with the peanuts. ठीक है? Disease management gaps हैं, poor market access हैं, farmer sell नहीं कर पाता है उसको, है local middleman को sell करना पड़ता है. Uncertain export policy है, government might randomly impose export bans. The prices are going up. The farmer who could have benefited, he will not get benefited now. These are again some other issues. और देखें, multiple agencies हैं, लैंड एक्विजिशन इश्यूज हैं फॉर मार्केट यार्ड्स, पुअर रूरल रोड मेंटेनेंस हैं, लैक ऑफ सेपरेट पावर फीडर्स हैं, जिस कारण से बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी का मिसयूज होता है, वाटर का मिसयूज होता है. रिसोर्स इंटेंसिव प्रोडक्शन है, सीरियल सेंट्रिक क्रॉपिंग पैटर्न है. वी आर लार्जली फोकसिंग ऑन दी व्हीट एंड राइस, नॉट ऑन दी अदर क्रॉप्स. रीजनली बायस्ड एग्रीकल्चर है, कुछ एरियाज में जो है बहुत ज़्यादा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हरियाणा, पंजाब. बाकी देश में उतना एग्रीकल्चर अच्छा हम लोग नहीं कर पाए हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ. राइट, कंज्यूमर बायस है इन द एक्सपोर्ट पॉलिसी. अगर प्राइस बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट इंपोजेस द एक्सपोर्ट बैन, दैट इज द कंज्यूमर बायस. स्टोरेज लॉसेज हैं, काफी सारा जो हमारा क्रॉप है वो स्टोरेज के दौरान ही डैमेज हो जाता है. दो फार्म गेट प्राइस रियलाइजेशन. ठीक है, सो दिस आर 30 पॉइंट्स which are generic issues in the Indian agriculture and which we can use in any kind of answering. Similarly, you can see for way forward, you can directly take a screenshot from here that अगर कुछ भी एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, what all points as a way forward we can write. The first slide, the second slide, the third. तो बेसिकली जो हमने चैलेंजेस लिखे थे उसी का एक तरीके से हम लोग कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं. एंड दिस इज फाइनली द फोर्थ बेसिकली वे फॉरवर्ड. So with this, we end this discussion for the template for agriculture answer writing. Thank you.